So you're from Madhya Pradesh, Bhopal. And how did you make your foray into the film world? So it's a very interesting story because बचपन में तो I used to paint a lot, sketching, drawing. That was my main thing. So बोलते हैं ना एक पैशन भी है, बट एक एक्साइटमेंट ऑफ लाइक कि हाँ दुनिया में कुछ चल रहा है, मेरे को मम्मी टॉपिक देगी, मैं पेंट करूंगी. So I always ask everyone, give me some topic, and I'll sketch. I used to draw a lot. So my mom said, you wanted to become a painter? I said, I don't know. But school days, and then painting बहुत closely. And if you know about Jawahar Bal Bhavan, so very beautiful institute for children's. 15 plus तक up, you can go there, you can learn whatever you want. It's an open government ने इतना सुंदर चीज बनाई है बच्चों के लिए after school. That actually gave birth to that creative expression. Yes, because my mom, she believes that this गुरु शिष्य परंपरा हम तो वहीं से आते हैं. हाँ. तो गुरु शिष्य परंपरा में बेस्ट चीज होती है when you got a guru, आप अपने आप को समर्पित कर देते हैं. बिल्कुल. And then उसके बाद they will do whatever they want. जब आपको हार्ड वर्क करना है और दिल से बस शिद्दत से काम करना है. सो मम्मी का था गुरु ढूंढो कहाँ है. तो मेरा ऐसा हो गया जवाहर बाल भवन जाके आई गॉट माय गुरु विनय सप्रे सर. सो वी स्टार्टेड डूइंग. मेरा पेंटिंग चल रहा था. आई वाज अराउंड, आई स्टार्टेड पांचवी मतलब बोलते हैं ना कि 5th क्लास से मेरे को प्रॉपर प्ले में इंटरेस्ट आ गया था. जवाहर बाल भवन की वजह से आई गॉट एडमिशन इन पेंटिंग and theater because I don't want to copy the things. तो classes में होता है ना, they used to say just copy this. So I don't know the value of. So you became an art entrepreneur. Yeah. So I asked them, I don't want to copy. Can you give me some topic? No. Then I saw a theater class. I said this is the best place to sit and draw. Oh. So I used to sit there in that area. It was a big space, theater space. And I used to see all the बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं, small movement, and I used to sketch those things. One day something happened and there was a play going on which has to be performed in Delhi. Okay. Delhi Jawahar Bal Bhavan. And that main lead girl was absent. I don't know what happened. 2 days she was not there. No news, nothing. And my director, the sir, KG Trivedi, चच्चा बुलाते थे हम उन्हें. वो बोले you have to perform because you are sitting here, you know everything. I said no, I don't know. He said no, take the script, just बोलो, इतना सोचना नहीं है. तो मैं ऐसे थोड़ी नाटक होता है. People don't know that I'm not the person who have practiced for 3 months. But मेरा तो मजाक उड़ जाएगा. रात भर बैठ के याद किया डायरेक्ट. That was my first performance called लड़की पढ़कर क्या करेगी. It was a nukkad natak. And then how I started doing theater, and Bhopal is a hub, theater hub, Madhya Pradesh mein. And I used to, like after school, I have 2-3 rehearsals. So feeling so blessed to be in Bhopal, in that city you have Bharat Bhavan. Yes. A proper art space where you can go watch plays, listen to all the music. आर्ट गैलरीज होती है. नेचर नर्चर्स देन सब कुछ. और वो आप जब सुनते थे बाबा कारन जी, रेपेट्री, थिएटर आर्टिस्ट, उधर से. तो 2001 से प्रॉपर मैंने थिएटर शुरू किया. 2001. एंड देन NSD कैसे आया. ऐसे आपको कुछ छोर मिलते रहते हैं. यू जस्ट हैव टू बी वेरी अवेयर ऑफ कि आप थोड़ा. So in terms of theater vis-a-vis films, where is the? So this is, yeah, it's coming from this painting चल रहा था, theater शुरू हो गया, theater करते करते, and in between I got President Award in 2007 for creative arts. So I used to paint, sculpt and craft. I do craft work also. And पढ़ाई भी मेरी Bachelor of Arts में हुई. So करते करते theater serious हो रहा था क्योंकि मुझे बहुत कुछ पसंद आ रहा था. इतने फॉर्म्स हैं, उसमें भी अंदर जाते हो और भी फॉर्म्स है, डेप्थ में जाते जाते यू फील लाइक कि कुछ तो रियलिस्टिक और कुछ है क्या. एंड देन वन ऑफ माय डायरेक्टर, ही एक्चुअली फिल माय फॉर्म फॉर NSD एंड आई गिव दैट एग्जामिनेशन व्हिच इज वेरी ट्रिकी फॉर एवरीवन. पीपल यूज्ड टू गिव एग्जाम फॉर 3-4 years, 5 years. स्टिल पता नहीं है व्हाट इज द क्राइटेरिया. I got selected on my first attempt. Wow. So lovely. Yeah. So we are at the Rajasthan DigiFest
part of the Thai Global Summit in Jaipur. I'm Charu Malhotra, co-founder and managing director of Primus Partners, the knowledge partner to Thai. And here we are joined by Indira Tiwari, actor, known for her work in first film Pipli Life, followed by several other masterpieces, Gangubhai Kathiawadi, Serious Men, Akarshan, Bastar, and many more to come. Yeah. Yes. Getting to know what you were doing and how you came into films, you know, um, relatively a younger artist in the film world, where so many digital innovations, alternative to, let's say, theater, linear television, platforms like OTT have come up. In all of this, while I was listening to you speak, एक सवाल मेरे जहन में बार बार आ रहा था जो हम, and it has nothing to do because we are just two women sitting and talking here, but the whole question of gender in media and entertainment. So all that you were just sharing with me, I want to know, as a young girl and now as a young actor, Gangubai Kathiawadi, put forward another perspective, which questioned, which shocked, which had a lot of, it brought out a lot of women questions. Films like this, content like this for new artists, for filmmakers, is it attractive? And from a perspective in terms of, on commercial cinema, is this a viable storytelling, a kind of a narrative or a direction that new filmmakers will take up more and more? Yeah, because for me, when I have done my first film, Nazar Band, it was from a Asha Poon Devi short stories. So I find it very interesting because that was the first gate opens to me as how cinema, like I've watched films. As an audience, I've watched a lot. So whatever I have seen, पुरानी फिल्म्स में श्याम बेनेगल जी से लेके वी शांताराम जी इज माय फेवरेट. सो मुझे हमेशा लगता था कि कैसे औरतों की जो पोजीशन है, जो कैरेक्टराइजेशंस हैं, जो कैरेक्टर्स लिखे जा रहे हैं, वो कैसे चेंज होते जा रहे हैं. सो नाउ बिगनिंग में मुझे भी ऐसे कैरेक्टर्स कॉल होते थे जहाँ पे कैरेक्टर ब्रीफ वॉज लाइक वो उसकी वाइफ है एंड वो बहुत प्यार में है एंड फैमिली संभालती है, वेरी नाइव. तो मुझे लगा ओके, बट उसके अलावा क्या, व्हाट इज द कैरेक्टर और ब्रीफ क्या है, क्या स्ट्रॉन्ग है चीज़ें. तो अभी मैं देख रही हूँ कि आरक्षण, पीपली लाइफ, सत्याग्रह, सीरियस मैन, गंगूबाई काठियावाड़ी, बस्तर, इसमें जो महिला किरदार मैं निभा रही हूँ या जो कहानी मैंने हाँ बोली, वो सोसाइटी में कितना कुछ दे रहा है. क्योंकि मेरे लिए हर बार ऐसा लगता था, एक तो न्यूज़पेपर घर पे आता है, वो तो एक तरह का न्यूज़ है, बट सिनेमा इतना इंटीमेट न्यूज़पेपर फील लगता है मुझे कि हमें पता नहीं किस किस कॉर्नर पे क्या क्या हो रहा है, बट 1-2 घंटे की फिल्म आपको हिला देती है एंड आपको सोचने पे मजबूर करती है कि आप कहाँ पर हो इन टर्म्स ऑफ ग्रो. तो कर रहे हैं हम लोग, बट क्या सच में कर रहे हैं? एंड इट्स नॉट अबाउट कि मैं खुश हूँ, मुझे सब मिल गया, बट इट्स अबाउट यहाँ क्या हो रहा है. सो क्या वो आपका माइंडसेट ओपन अप हुआ है वो 3 लेयर के लिए, जहाँ पे यू कैन एज अ सिटीजन यू कैन थिंक अराउंड द वर्ल्ड. In terms, if I were to ask you कि mainstream cinema, हाँ, जब हम stereotyping को Correct. के roles को women को उनसे निकाल लेते हैं Correct. और pure commercial जो हाँ. pure commercial stereotypes Correct. होते हैं उनसे हटकर ऐसी फिल्में बनती हैं. So are these good in terms of a business case for नहीं, film? बट मुझे वही, क्योंकि क्या हो रहा है ना, ये बहुत, इसमें भी 2-3 दिमाग है. जो आपने पहले भी मुझे पूछा, मुझे बार बार ये लग रहा है कि अगर आप मुझसे पूछोगे, क्योंकि बहुत सब्जेक्टिव हो जाएगा. बिल्कुल, हाँ. सो मैं तो ये बोलना चाहूंगी कि मुझे ऐसा फील होता है कि इस तरीके की चीजों से, जैसे पहले मंडी बनी थी, मंडी इज अनदर काइंड ऑफ अ Yes. कल्ट फिल्म. नाउ वी आर, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट गंगूबाई काठियावाड़ी, सो यू कैन सी इट्स अ प्रॉपर कमर्शियल फिल्म. Right. तो इतना कमर्शियल होते हुए भी कहानी को कैसे लेकर आना, बीच में चीज़ें मिस हो जाती हैं क्योंकि चीज़ें बदल रही हैं. मुझे भी बहुत चीज़ें जो मंडी में पसंद थी, बट मैं एकदम ऐसे हो गई कि मुझे ऐसा लग रहा है अंदर से कि जो मैं वो फील कर रही थी यहाँ थोड़ी सी मिसिंग है, क्योंकि यहाँ पे ग्रैंडनेस बहुत है.
बट इमोशंस तो वहां पे थे ज्यादा. सो मैं समझ पा रही हूँ कि जैसी कुछ और चीजें एलिमेंट एड ऑन होते जा रहे हैं, एकदम से मेन एसेंस मिस हो रहा है. बट ऐसी कहानी आप जब करते हो, रिस्क तो लेना पड़ेगा कि आप बोलना क्या चाहते हो, पहली बात. दूसरी बात, अगर आप ऐसी स्टोरीज लाओगे ही नहीं और हर स्टोरी सिर्फ That's true. हीरो हीरोइन होगी, लव स्टोरी होगी, गुड 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 होगा, बैड 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 होगा, Authentic तो नहीं होगा, yes. ऑथेंटिक नहीं होगा, तो वो ज्यादा वर्क नहीं करेगा. उसका फैन फॉलोइंग, उसका हिट होना विल बी फॉर अ शॉर्ट टर्म. सो व्हाट वी आर वर्किंग एंड वी आर हियर इन अ फेस्टिवल. आई हैव बीन टू बुसान एंड बहुत कुछ मैं देख कर आई, एंड आई फील लैंग्वेज तो कोई मतलब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बिकॉज वो आपकी फिल्म को देख के जिस तरह से एक्सेप्ट कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, आपके थ्रू आपकी They जगह, connected. They हाँ, connected. हाँ, आपके थ्रू आपकी जगह को जान रहे हैं हाँ, कि आप जिस बैकग्राउंड से आते हो वहाँ किस चीज की कमी है, क्या ज्यादा हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या होना चाहिए. तो अगर कहानी में कोई किरदार पेन से शुरू होता है बट वो पावर की तरफ जा रहा है, एंड कुछ कुछ तकलीफें हैं, शायद रियल लाइफ में वो सॉल्व होने में बहुत टाइम लगेगा, बट सिनेमा हैज दिस पावर ऑफ व्हाट यू कैन डू विद अ नैरेटिव. सो दैट सिनेरियो तो ले लिया, प्रॉब्लम है सोसाइटी में, बट वो प्रॉब्लम को डिस्कस करके उसमें रोना इज नॉट द गेम. हम्म, उस प्रॉब्लम को सामने लाके बनाते हुए बात करते करते सोल्यूशन दे देना, वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है. सो मेरे फिल्म के चॉइसेस भी वैसे हो रहे हैं. मुझे लग रहा है हम सिर्फ ये नहीं बता रहे दुनिया में क्या हो रहा है, वो हो रहा है बट ये होना चाहिए. सो क्या वो बदलाव हम ला पा रहे हैं. सो मुझे लगता है अगर हम हमारे जो हमारा मेन मकसद रहा है फिल्म को शुरू करने के टाइम पे, उसके एसेंस को नहीं खोए, रॉनेस को नहीं खोए. इतनी सारी रीजनल फिल्म्स आ रही हैं, right. एंड सबसे खूबसूरत मलयालम सिनेमा, वो लोग अपनी कहानी ला रहे हैं पर वो डरते नहीं हैं. वो जब अपनी स्टोरी लाते हैं तो वो रख देते हैं, Correct. एंड दे नोस कि आज नहीं तो कल ट्रेंड बदलेगा. Right. And we're also seeing those films in other different languages also today. Yeah, Each content is coming out in but multi. it's very funny when you started changing the बोलते हैं ना सबटाइटल आ रहे हैं and then आप लैंग्वेज बदल हाँ, देते हो. After 10 minutes, if you are a core hardcore person who wanted to understand and वो आपको टच कर गया ना, I would love to go back and see the cinema in the same same language. language. Absolutely. And I changed the language because essence तो miss हो रहा है ना. Correct. That dubbing won't work for me. आपने रीजनल की बात करी तो इतना कंटेंट हम देख रहे हैं, शॉर्ट फॉर्मेट भी देख रहे हैं, लॉन्ग नॉर्मल फिल्म फीचर फिल्म्स भी देख रहे हैं, सीरीज तो है ही है, बट दे आर कमिंग फ्रॉम ऑल क्वार्टर्स. दे आर कमिंग, द ग्राउंड अप स्टोरीज आ रही हैं, ऑथेंटिक रूरल हार्टलैंड से भी आ रही हैं, एंड भिन्न भिन्न प्रकार के कंटेंट क्रिएटर्स बना के ला रहे हैं. आई मीन पीपल वी डोंट इवन हैवंट इवन हर्ड ऑफ. इन द सेम वे इन फ्रंट ऑफ द कैमरा ऑल्सो, पहले तो सिल्वर स्क्रीन पे it took long time for people to establish themselves as a artist, hero, heroine. But with the advent of OTT and platforms like that, the whole journey towards stardom is probably becoming shorter and faster. Names are become, True. I mean, it's just not the Bollywood. I mean, now we know across all. So isme, I mean, where do you see young people, like young filmmakers, looking at a career for themselves? Do you think more and more actors, cameramen, directors coming up and, experimenting with filmmaking on OTT, will it be, viable monetarily as well for them? Yeah, because what happened, these OTT platform जब जिस तरह से आए, like Serious Man is a Netflix original film. So जब हमें स्क्रिप्ट पे बात हुए काम किया तो मुझे बार बार ऐसा लग रहा था, वाह, वी आर डूइंग एन ओरिजिनल फिल्म. क्या है और क्या होता है, नेटफ्लिक्स क्या कर रहा है और प्लेटफॉर्म्स क्या कर रहे हैं, एंड देन और नए आ गए, वेव्स आ गया, और भी इतने सारे कि कई बार आप जाके बैठते हो एंड देन आपको लगता है इतना इतना सब कुछ है. तो थोड़ा बहुत खुशी भी होती है, प्राउड लगता है, बट दुख भी होता है, क्योंकि लोगों को क्या होता है ना, आप जैसे किसी को कुछ देते हो ना, उसके प्लस के साथ माइनस भी आता है जी. सो OTT आने पे खुशी की बात है कि हमारे पास अब कंटेंट और हो गया है, काम बहुत हो गया है. दे आर ओपन फॉर ऑल काइंड ऑफ फिल्म्स, दे आर ओपन फॉर न्यू पीपल, मैच्योर, जो जिस तरह से एक सीनियरिटी जूनियरिटी होती थी, नया बंदा आ ही नहीं पा रहा है, बट दे आर ओपन. राइट. सो नाउ द वे एक्टर्स आर देयर, स्टोरी लाइन सिर्फ हीरो हीरोइन से हटके अब किरदारों पे चली गई है.
उस कहानी में कुछ और हो रहा है, सडनली एक पूरा सीरीज आता है एंड यू नो कि वो विनोद करके एंड देन वो फेमस हो गया एंड उसकी वजह से उसको इतने सारे काम आ रहे हैं, इतनी चीजें हो रही हैं, कैरेक्टर ड्रिवन हो जाता है एंड वो गार्ड की भी कहानी हो सकती है, करेक्ट, उसमें गार्ड हीरो है। हाँ सो इतनी ओपननेस आने से प्लस भी हुए हैं, बट माइनस ये हो गया है कि पीपल यूज टू थिंक कि यार सिनेमा क्यों जाना है, लेट्स वेट फॉर ओटीटी। हाँ उस पे आ ही सो जाएगा। दे आर नॉट हाँ अंडरस्टैंडिंग हाँ दैट सिनेमा का एक्सपीरियंस इज वेरी डिफरेंट। अगर एक फिल्म कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से बन रही है और लोग उसको सिनेमा में ला रहे हैं, बहुत सारी इंडिपेंडेंट फिल्म्स जो लोग लास्ट तक मतलब इतनी कोशिश हो रही है। मैं तो फेस्टिवल गई थी, आई हैव दिस फीलिंग न्यू कमर नए डायरेक्टर्स को एग्जैक्टली ये समझ नहीं आ रहा कि फिल्म जहां जहां भेजी है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी नहीं है, दे डोंट नो फिल्म दिख भी रही है कि नहीं, देखी जा रही है कि नहीं, सिलेक्ट हो रही है कि नहीं। इतना लंबा प्रोसेस है ना, वो जब तक अपनी एक्चुअल कमर्शियल फिल्म बनाने आएगा उसको 7-8 साल हो जाएंगे, क्योंकि गाइडेंस भी चाहिए, फिल्म भी भेजनी है, अप्रूवल भी चाहिए, एक्नॉलेजमेंट भी चाहिए, अप्रिसिएशन भी चाहिए। तो एक आर्टिस्ट के लाइफ में इतना सब कुछ हो रहा है, चीजें दिख रही है, बट हर कोई वहां नहीं पहुंच पा रहा। सो इसी को लेके अगर हम, एंड हियर वी आर एक्चुअली एट द यू नो द डिजी फेस्ट, टाई ग्लोबल एंड इवन गवर्नमेंट डीओआईटी राजस्थान, जिसमें एक पूरा आई स्टार्ट उनका एक फ्लैगशिप प्रोग्राम भी है। So, what is the help that you think young filmmakers, directors, and आपने waves का भी नाम अभी लिया है, it's all very supporting, enabling environment today. कहाँ और कैसे help मिल सकती है? You know, what is your request would be, let's say, आज हम राजस्थान में ही बैठे हैं, to the government of Rajasthan, filmmakers, specifically for those in media, entertainment, creative arts, in the orange economy, किस प्रकार की उन्हें मदद चाहिए और क्या platforms, क्या मतलब मुझे अंदर से ऐसा अभी तो स्ट्रॉन्ग फीलिंग बोलते हैं ना, अगर हम लोग एक साथ ग्रुप में बैठे हैं, जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं एंड आइडिया पुट किया जाए, क्योंकि प्रॉब्लम्स भी बहुत हो रही हैं, हमें लग रहा है कि हमने चीज़ें अवेलेबल कर दी हैं, सबको मिल रही हैं, सबको नहीं मिल रही हैं, चीज़ें जहाँ पहुँचनी चाहिए वहाँ पे नहीं पहुँच रही। यू नेवर नो कौन कब क्या बना रहा है, किस कोने में, और कब बन के रखा है, वेट करता है। मुझे ऐसा लगता है अगर हम लोग ये जो कम्युनिटी बिल्डअप हो रहा है, जैसे यहीं पे जी टॉस है, टॉस काम कर रही है, ऐसे मुंबई में भी बहुत लोग हैं, कोई फंडिंग नहीं है, बट यंगस्टर्स अपने आप ही स्क्रीनिंग करते हैं। सो दे यूज टू स्टार्ट कोलैबोरेटिंग विद पीवीआर एंड अदर स्टफ एंड दे स्टार्टेड कॉलिंग पीपल कि दिस इज आवर कम्युनिटी, वी हैव टू वॉच आवर फिल्म, सिनेमा में आके देखो। वी आर अरेंजिंग अ डिस्कशन पैनल ऑल्सो। सो आई एम थिंकिंग ऑफ इफ वी कैन डू वन थिंग। अभी तो मेरे को बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स तो हैं, बट व्हाट अबाउट द इंडिपेंडेंट सिनेमा, इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स हु यूज टू, एक एक कोने में राजस्थान के डीप इंटीरियर से भी एक बंदा फिल्म बना रहा है, बट उनका प्रॉब्लम आ रहा है, कोई कह रहा है कमर्शियली नहीं होगा, कैन यू प्लीज चेंज द लैंग्वेज। सो वो घबराहट में कि मैं क्या करूं, मेरी लैंग्वेज में समझ आएगा क्या, दे सेड सबटाइटल है पर मजा नहीं आता, कैन यू जस्ट हिंदी मिक्स कर दो, ये कर दो। तो बहुत सारे लोग मैं ऐसे भी सुन रही हूँ जो अपने एसेंस में इतना मिक्सचर हो रहा है कि उसको सब बदलने के बाद समझ नहीं आ रहा फिल्म लेके कहाँ जानी है। सो कैन वी हैव अ स्पेस जहाँ पे हमें पता है कि दिस इज लाइक मैं एमपी से हूँ, इफ आई नो दिस इज एमपी एंड वी हैव अ सर्कल जहाँ पे समझदार फिल्म मेकर्स भी हैं, एक समझदार ग्रुप जहाँ पे फिल्म मेकर्स भी हैं, यंग लोग भी हैं। इट शुड बी अ मिक्सचर ऑफ ऑल हु कैन थिंक अराउंड एंड देयर शुड बी अ ग्रुप हु कैन वॉच ऑल द फिल्म्स। सिलेक्ट करने के बाद यू शुड ऑलवेज हैव अ लिस्ट कि दीज आर द फिल्म मेकर्स, ये हमारा एरिया, ये फिल्म्स हैं। सो जब आप आगे बढ़ते हैं ना, तो आप इनको गाइडलाइन करवा पाए, इनके लिए सेशन रख पाए कि फिल्म्स बनाने के बाद लेके कहाँ जानी है, किससे बात करना है, इसको कहाँ ले जाएंगे और क्या। अब तो मेरे दिमाग में कल रात में आ रहा था कि जैसे इतने ओटीटी प्लेटफॉर्म से, क्या हमारे पास एक प्लेटफॉर्म हो सकता है जहाँ सारे इंडिपेंडेंट फिल्म्स बनाने के बाद हम फिल्म को रख दें, हम उसमें कुछ भी कमर्शलाइज करके खुद नहीं सोचे, बट वॉट एवर द अमाउंट इज मेंशनिंग दैट विच शुड बी इक्वल according to the budget what they have put. If there is a certain amount कि इतना है, तो price should be example 200, उससे भी हाई बजट चला गया तो 500 कर दो, जो कि सिनेमा हॉल में भी मिलता है, कोई भी फिल्म हो 450, उसके ऊपर चेयर के पैसे दे रहे हैं हम लोग, चीजें हो रही हैं बहुत कुछ। तो ऐसे अगर वहां कर दिया और वो पैसा कोई कभी भी देखे, अगर वो जाके देख रहे उन्हें अच्छा लग रहा है, तो वो पैसा डायरेक्टर के अकाउंट में जाएगा ना, प्रोडक्शन के अकाउंट में जाएगा।
तो इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स के लिए क्यों एक प्लेटफॉर्म नहीं बन रहा Absolutely. जहां पर वो फिल्म बनाने के बाद आके अपना जेन्युइन बजट बताएं, फिल्म दिखाएं एंड उसको वहां डाल दो ना. हु आर वी डिसाइड कि भाई ये अच्छी फिल्म है, ये बुरी फिल्म है? ये तो ऑडियंस डिसाइड करेगी ना. सो आप मत सोचो, हो सकता है वो फर्स्ट टाइम फिल्म मेकर है, 4 फिल्मों के बाद वो कमाल काम कर सकता है. तो हर आदमी को राइट्स है बार बार ट्राई करने के, फेल होने के, बट एक स्पेस होना चाहिए जो सेफ हो. उस सेफ स्पेस में वो आके बोले कि यार मैंने मेरी जेब से 50,000 लगाए इस फिल्म में, मिले नहीं मिले. अभी तो ऐसी स्थिति होगी, पैसा वापस मिले नहीं मिले, फिल्म लेके कहाँ जाए, ये भी प्रॉब्लम हो रही है. एंड एक और थोड़ी दुख की बात है, डिसहार्टेड नहीं होना है, बट मुझे पता चला 6-6.5 साल पहले मैंने एक फिल्म करी थी, सृष्टि फिल्म के जो डायरेक्टर थे वॉज अ फर्स्ट टाइम फिल्म मेकर, पॉल अंतर, एंड ही वर्कड ऑन दैट फिल्म फॉर 6 years. ही वेटेड फॉर द VFX, साउंड, एवरीथिंग, एंड जिसको उन्होंने हायर किया ना, जब क्वालिटी नहीं आ रहा था, जो भी अमाउंट दिया छोड़ दिया, इतना नहीं देखा. बजट बढ़ता जा रहा था 6 साल में. वो फिल्म का बजट आउट ऑफ द बॉक्स चला गया. एंड में फिल्म फेस्टिवल्स में भेजी गई. भेजने के टाइम पे जब वो बोले ना, मुझे बहुत दुख हो रहा है क्योंकि लोग फिल्म्स देख नहीं रहे खोल के. मैंने बोले तुम्हें कैसे पता? ही सेड देयर इज एन एल्गोरिथम, यू कैन चेक. If you have sent the film to the festival and you have paid for that particular fees, they are not opening the link, but they send you mail, this time we are very sorry. So मैं बोला ऐसा भी हो रहा है क्या? तो माइंडसेट तो हर तरह की चीजों की जानकारी रखना है, बट खुद को इतना स्ट्रांग बनाना है कि हम जिस जगह पे गड्ढा करने के लिए वो मार रहे हैं कुल्हाड़ी, वो हमें करते रहना है. बट वो well, that's also an entrepreneur's journey. Yeah, it's very difficult. It very is, difficult. it is, क्योंकि एज एन एक्टर मैं तो ऐसे मोमेंट पे आती हूँ जब सारी तकलीफें कोने में रख के हम परफॉर्मेंस कर रहे हैं. जी. फिल्म बनने के बाद बिकेगी कहाँ, कहाँ जाएगी, क्या होगा, ये आपको सोचने की मेरे को भी जरूरत नहीं है. आपको एनर्जी तो देनी है आखिरी तक. एंड योर एनर्जी इज एवरी टाइम व्हेन यू कॉल योर डायरेक्टर एंड आस्क कि क्या हुआ, कुछ हो रहा है बढ़िया, एंड दे कॉल्ड अस कि डिफिकल्ट लग रहा है बट हम करेंगे कुछ. सो ये तो बहुत बहुत सुंदर है. और आई थिंक वो ओपन अप है. हम लोग इतने कमर्शलाइज नहीं हुए अभी भी कि मेरा काम हो गया मुझे कॉल मत करना. सो एंड द लास्ट क्वेश्चन अराउंड AI. अब हम कितना कंटेंट में देखते हैं VFX, AI. What are your thoughts about? It's a lovely question because I also connected to that thing. Recently I've done a Indo-French Sri Lankan film called Spying Stars, and we got selected in Busan Festival in the main competition. Okay. So I've been there for that film, directed by Vimukti Jayasundara. He's from Sri Lanka. Film is all about that. So we are talking about, and मुझे ऐसा फील हो रहा था ना वो फिल्म करते करते, आई सडनली रियलाइज कि मुझे इतना डिटेल में नहीं पता था. क्योंकि आपको लगता है ना ये तो आसान सी चीज़ है, हम यहाँ से जाने के बाद घर में जाएंगे, अंदर जाने के बाद आपका फ़ोन आपके बेडरूम तक जाएगा, बट इतनी छोटी छोटी सी डिटेल्स हैं. एंड AI किस तरह से प्लस में भी है, कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो मुझे लग रहा है कि मैं देख पा रही हूँ. डिजिटली हम लोग इतना ग्रो कर गए कि AI यूजफुल भी लग रहा है पर डरावना भी लग रहा है बहुत जगह पर. क्यों डरावना? क्योंकि लोगों को लग रहा है आसान हो गया है, तो चीज़ें आसान करने के चक्कर में क्रिएटिविटी हैम्पर हो रही है एंड दे वांटेड टू डिलीवर थिंग्स फास्टर. सो जो फास्ट जर्नी है ना, उस चक्कर में वी आर लूजिंग अप आवर स्लोनेस and we want to deliver but something it is because enabling there is a lot pressure. more people to come in and to experiment with this form. Yeah, but you have to, again you have to just think कि ये जो कैसे बोलूं, अगर हम इस चीज की मदद ले रहे हैं ना सर्टेन चीजों में, तो उसके बाद इसकी लिमिटेशन क्या है कि वो आपको रिप्लेस ना कर दे. मुझे टेंशन इस बात की हो रही है कि अगर छोटी छोटी चीजों से हटके, मतलब इसका जितना इस्तेमाल है उससे हटके एक्स्ट्रा इस्तेमाल, मे भी कुछ ग्रैंड हो जाएगा, चलो एक्सपेरिमेंट करके कल हम कुछ बड़ा कर देंगे, बट क्या इसको बहुत ही समझदारी से इस्तेमाल किया जा सकता है? क्योंकि अभी कल अगर हम इंस्टाग्राम पे कुछ भी देखें, मैं तो न्यूज देख के डर गई, बाद में पता चल रहा है नहीं रियल नहीं है. सो अभी मुझे नहीं पता, कल मेरे सामने एक इंदिरा आ गई, सो किसको मैं बताऊं कि ये मैं ये. Yeah, somebody just shot a video of another person sitting next to us, and inserted another, human. It was, yes, very interesting and very interesting, exciting, but ऐसे dangerous जैसा भी ऐसा थोड़ा सा लग रहा है, क्योंकि आई थिंक हर चीज लिमिट में अच्छी होती है. एंड स्पाइंग स्टार में भी ये हो रहा है कि हम कितने ह्यूमन रह पा रहे हैं, क्योंकि हम इतना घिर गए हैं ना टेक्नोलॉजी से. वो टेक्नोलॉजी अच्छी है
बट वो कहाँ पे यूज होनी है वो आपको पता होना चाहिए. बट हर जगह पे हर वक्त पूरी हर चीज वो नहीं करके दे सकते. आफ्टर अ पॉइंट यू विल से कि भाई मुझे कुछ नहीं करना, मेरा काम यही कर देगी. सो आई हैव अ मशीन, आई जस्ट सिट हियर, सब हो जाएगा. सो यू बिकम समथिंग लाइक दिस. सो वो तो नहीं करना ना लाइफ में. Yes. तो वो मुझे लगता है. तो कुछ कुछ चीजों में अच्छा है जहाँ पे टेक्निकली, जैसे अब इतनी फिल्म आ रही है, सिनेमा में VFX हो रहा है, टेक्नोलॉजी है, AI से इतने सारे, मुझे भी पता चला जो सबटाइटल होते हैं, वॉइस ओवर्स होते हैं, वो सब AI में भी हो रहा है. बट अदर साइड देखो, आर्टिस्ट का जॉब चला जाएगा, मशीन रिप्लेसेस हो जाएंगी. सो वो मिक्स कैसे कर सकते हैं बैलेंस, ताकि हमारा भी हो जाए उनका भी हो जाए. एक्सपेरिमेंट करना है करो, बट एक्सपेरिमेंट कांट बी योर लाइफ. Right. सो वो स्पाइंग स्टार में भी यही हो रहा था कि स्पाइंग इज ऑल अबाउट लाइक कितना मशीन मशीन मशीन. एंड कैन वी गो टू द स्टार्स यार, जस्ट नेचर, ह्यूमैनिटी, काइंडनेस, जो कि हमें ह्यूमन रखता है. क्या हम वो कर पा रहे हैं, या हम इतना ज्यादा लिप्त हो चुके Yeah, हैं? our और emotions, our हाँ, subjectivity, एंड and दैट फिल्म yeah. ऑल्सो टॉक्स अबाउट कि जिसको मैंने क्रिएट किया है वो सडनली अगर पलट के बोले कि वी डोंट नीड एनी ह्यूमन इमोशंस, कैन यू मेक इट बिट कि ये ऐसा होना है, ऐसे ही खत्म होना है. सो चीज़ें जितनी स्मार्ट होती जाएंगी, वहाँ पर आपका एक नेचुरल इंस्टिंक्ट चला जाएगा. एंड आई एम हियरिंग फ्रॉम लॉट, एंड मैंने भी बीच में, मैं बोलती हूँ, मैं खुद भी परेशान हो गई थी क्योंकि व्हेन मेरे को पता चला ना चैट GPT है, I don't know what happened to me. Maybe my mindset also. I asked ChatGPT to do like ये की ये. I don't know why. Why I'm giving them too much Options. options, like वो क्यों decide Decide करेगा करे. मेरे लिए? Maybe because we're a little lazy and Lazy yeah. and human touch. Human, हम लोग अपने लोगों से connected नहीं है ना. So मेरी मम्मी मेरे लिए बहुत कुछ select करती है. But when she was not there, she is busy. I suddenly thought of इसको पूछ लूँ क्या? तो ऐसा भी हो रहा है. तो मैं भी अपने आप को बचा रही हूँ कि बेडरूम के बाहर तक सारी बोलते हैं ना, सारे चार्जिंग पॉइंटर्स बाहर है, मोबाइल बाहर ही छोड़ दो. अच्छा. एक एक कॉर्नर हो सकता है जो मेरा कॉर्नर है, तो वहाँ पेन पेपर No चाहिए. technology. नो टेक्नोलॉजी. Only pen and paper as वो बाहर technology. ठीक है क्योंकि हर जगह पे हो रही है. अभी आपके इतने सारे अप्लायंसेस, सब कुछ अपग्रेडेड हो गया ना. वो Right. अपग्रेड होना, वो फास्ट होना, और ये बता पाना कि मुझे मालूम है, ये डरावना है. आप कभी नहीं बोलते मुझे पता नहीं है. ये क्या होता है? मैं तो आजकल सुनना ही छोड़ दिया. People wants to sound very smart Right. and intellectual and intelligent. So वो now they are competing with all the With technology. Yes. So Talking about competing, your experience of DigiFest while you've been here, आपको क्या क्या बहुत अच्छा लगा यहाँ पे? यार ऑनेस्टली मैं अभी आई, मैंने कल अटेंड किया फेस्टिवल, एंड मैं फिल्म, क्योंकि मेरा रुझान मेरे को फिल्म मेकिंग में समझना था, एंड देन जयपुर में फर्स्ट टाइम प्रॉपर आई हूँ. सो मैं अभी निकल के पूरा विजिट नहीं किया. एंड वॉट एवर आई हैव हर्ड दैट इतने टाइम से हो रहा था, मुझे सबसे इंटरेस्टिंग बात लग रही है कि एक ही रूफ के नीचे इतना सब कुछ. इट्स अ डीजी फेस्ट जहाँ पे लोग गेमिंग भी क्रिएट कर रहे हैं, Yes. जहाँ पे आप बैठ के समझ पा रहे हो कि AI यूज होने से क्या चीज और बेटर हो सकती है. अगर मान लो किसी चीज को करने में आपको बहुत टाइम लग रहा है, बट वो एप्लीकेशन कैन हेल्प यू आउट विद इन, बोलते क्वालिटी बेटर कर दे रही है आपकी. जी. सो इफ यू वांट टू क्रिएट समथिंग, यू कैन क्रिएट. सो मेरा बोलना है बस उसको राइट दिशा में ले जाना इज द गेम. अदरवाइज इट्स वेरी गुड टू हैव सच थिंग्स विच मेक्स योर लाइफ ईजी, एंड जो भी आप क्रिएटिवली कर रहे हो उसे इन्हांस करके क्वालिटी वाइज बढ़ा दे. तो शायद मैं वो स्पेस क्रिएट नहीं कर सकती हूँ फिल्म में, बट वो स्पेस मेरे को डिजिटली ऐसे क्रिएट हो जाएगी विद इन अ सेकेंड. मे बी कश्मीर भी नहीं जाना पड़े. अब तो ऐसे ही सुन रहे हैं हम लोग, सब कुछ पॉसिबल है ना. बिल्कुल. एंड तो कॉस्ट इफेक्टिव भी हो जाता है. कॉस्ट इफेक्टिव हो रहा है. बट वही, जहाँ ज़रूरत है वहाँ इस्तेमाल करना इज बेस्ट. शायद बोलते हैं ना, किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा डिटेल से पता चल जाएगा तो हम उसको कितना यूज़ करना है कितना नहीं, और हम उसे यूज़ कर रहे हैं, वो हमें नहीं यूज़ करने लगे, इज द मेन थिंग. Sure. Thank you. This was lovely speaking with you, Thank you. Indira, and all the best for your future. थैंक यू.